Police Unit for Women and Children. Firstly, I would like to introduce you all to the Institute. The seed in the form of Rohini Educational Society, sought to provide quality education in 1983, has flourished to a tree spreading its branches and stems of education far and wide. Through its concerted efforts, the Society has created several institutions of known standards and repute for imparting quality education right from the kindergarten stage to master level under the brand name Geeta Rattan. Geeta Rattan International Business School, GIBS, was established in the year 2004. It is a self-financing ISO 9001-2008 certified and NAAC accredited institution. It is affiliated to the Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, and approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for technical courses, and Bar Council of India for law courses. The institute conducts various courses, namely MBA, MBA International Business, BBA LLB Integrated, BA LLB Integrated, and BBA. GIBS has been graded A by National Assessment and Accreditation Council in second cycle. GIBS has been rated A+ by State Fee Regulatory Committee, a fee committee of Government of NCT of Delhi. GIBS has been rated highest grading A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GTSIPU University since 2013 till date. GIBS has been rated grade A by Academic Audit Cell of GTSIPU University since 2011 till date. The institute has been ranked number 93 pan-India by Dalal Street Investment Journal 2017. GIBS has also achieved 4-star ranking in Institution Innovation Entrepreneurship Cell, Ministry of Education ranking 2021. GIBS has been ranked number 49 in top 150 B schools in India, 34 in top 100 private institutes in India, and 19 in top 20 not B schools for its MBA program by the Times Business School Survey 2022. Also, GIBS has been rated as number 2 pan India for BBA program by Times Business School Survey in 2021, 2019 and 2018. Vice Chairman Shri Anirudh Jindal Sir awarded with ED Leadership Excellence Award 2023 in Academic Excellence for Geeta Rattan Educational Group by Economic Times. Received ED Excellence Award for Corporate Affairs in Higher Education for Geeta Rattan International Business School by Economic Times. As one of the national capital's leading business school, GIBS brings together people, culture, ideas from around the corner to change life and to transform organizations. The institute is an ideal setting for learning, a diverse community knit together by its physical environment as well as by its commitment to the highest standards of excellence, integrity, free expression, and equality. The campus boasts state-of-the-art infrastructure, facilities, and resources. Self-defense training is the life skill that helps girls to be more aware of their surroundings and be prepared for the unexpected at any time. Through the self-defense training, the girls are taught to become psychologically, intellectually, physically strong enough to protect themselves in times of distress. The primary objective of initiative is to educate our female students about practical self-defense techniques, raising awareness about personal safety, and foster a sense of confidence and empowerment among them. For the day, we have with us Head Constable Ms. Neetu Ma'am, Head Constable Smita Ma'am, and Constable Rajni Ma'am for Special Police Unit for Women and Children, which is special body of Delhi Police which aims to safeguard the right of women and children in the capital. While on one hand it inquires complaints and investigates the cases related to dowry and other crimes against women, primarily matrimonial disputes specified in section 498A and 406 of 34 IPC. On the other hand, it caters to children by building cadre of children-friendly police and child-friendly police stations across the city. As a nodal body, it works with various NGOs, schools, colleges, and other agencies to gather insights and spread legal
about various issues concerning women and children in the present times, thereby striving to create more enable and empathetic ecosystem. This time we are fortunate to collaborate with you. We welcome you. Now, I would like Special Police Unit for Women and Children team to take over the event and commence it. मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इतने बच्चों को देख के, क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो वहां पे गैदरिंग बहुत कम होती है, स्कूल्स में तो मिल जाती है। तो अपने लिए जोरदार तालियां। और जितनी अच्छी तालियों की जो गूंज आई है, उतनी ही अच्छी आपकी आवाज भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेशन है वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का है, राइट? अब ये नहीं, मुंह से बोलो ये वाली आवाज। तो यहाँ पे आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आए हैं। तो आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि नहीं? हम लोग जो आए हैं, आपको जो भी टेक्निक बताएंगे वो टेक्निक बाद में है, पहले आपकी आवाज है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस आवाज को बनाए रखना है, लेकिन कहां पे बनाए रखना है? जहां पे जरूरत है, जहां पे जरूरत है। मेरा नाम हेड कांस्टेबल समिता है, मैडम हेड कांस्टेबल नीतू और कांस्टेबल रजनी मैम। जैसा अभी बच्चे ने बताया, हम लोग दिल्ली पुलिस से हैं। दिल्ली पुलिस की यूनिट है स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, नानकपुरा में हमारा हेड ऑफिस है। प्लीज बातें नहीं करिएगा, क्योंकि जो बताया जाएगा फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारा हेड ऑफिस का नाम सुना है कभी? वुमेन सेल का नाम सुना है? वही है, उसी का नाम चेंज किया है, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है। उसमें हमारा एक सेल्फ डिफेंस विंग है, 40+ का स्टाफ है। हम जो यहाँ पे ट्रेनर खड़े हैं, जितना भी 40+ का स्टाफ है, सभी ITBP एकेडमी मसूरी से कराटे में ब्राउन बेल्ट हैं। जो भी टेक्निक हम सिखाते हैं, दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, NGO, RWA, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स भी हमारे से क्लास लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है, चाहे हम घर में हो, चाहे हम घर के बाहर हो। तो इस ट्रेनिंग को देने का मकसद ये है कि दिल्ली का हर बच्चा, हर महिला अपने लिए इतनी सशक्त हो जाए कि जब भी कोई उसके ऊपर मुसीबत आए तो आसानी से अपना बचाव कर ले। ट्रेनिंग के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब भी कभी अगर बाहर आप निकलते हो, चाहे आप कॉलेज के लिए आ रहे हो, चाहे आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, और दिल्ली के मार्केट तो बहुत भीड़ वाले हैं ना, है कि नहीं? ऐसे नहीं, यस में मुंह से बोलो। और बोलने के लिए तो शायद बार बार नहीं बोलना चाहिए। तो वहां इतनी भीड़ होती है, उसमें अगर आप कभी जाते हैं तो सबसे पहला है आप अलर्ट होके चलिए। आपके दाएं बाएं कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको आप नोट करें। अगर आप अलर्ट होके चलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे, तो कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना नहीं होगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको। जब भी किसी के साथ स्नैचिंग होती है, फोन स्नैचिंग हो, चैन स्नैचिंग हो, बैग स्नैचिंग हो, कब होती है? जब हमें ध्यान नहीं होता है, हम कहीं और फोन में लगे रहते हैं, या दो फ्रेंड साथ में हैं, मम्मी के साथ में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही जरूर होती है। हमारे बैग में हमारा कीमती सामान होता है ना, साइड में लटका के छोड़ देते हैं या पीछे लटका लेते हैं। नहीं, कहाँ रखना चाहिए उसको? आगे रखना चाहिए। लैपटॉप है, फोन है, पर्स है, सब कुछ
कुछ उसी में है। आजकल तो फोन में, लैपटॉप में सारा डेटा उसी में होता है हमारा। तो थोड़ा सा मतलब सावधानी के साथ चलिए। और जो भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता यही है कि मुझे आज किसी ना किसी बच्चे को, किसी महिला को टारगेट बनाना है, तो उनसे बचने के लिए आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और आपका एक जवाब ऐसे इंसान को वहीं पे रोक सकता है। क्योंकि हम लोग, मेरे साथ अगर हो रहा है, किसी ने अगर मेरे साथ बदतमीजी करी और मैंने उसको सहन कर लिया, उसको बढ़ावा मिलेगा, वो नेक्स्ट किसी और को टारगेट करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे घर में हो रहा है, चाहे घर से बाहर हो रहा है, अगर कोई आपको बैड टच दे रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाना। पक्का? गुड। क्योंकि कभी भी अगर कोई टारगेट करेगा ना हमें, तो हमारा फेस रीड जरूर करता है। इस चीज का पता है? पता है कि नहीं है? इजीली वो टारगेट हमें जब बनाता है, जब हम डरे हुए हों, हमारे फेस पे दिख जाता है कि ये बच्चा, ये महिला, ये तो बिल्कुल डरी हुई है, ये मेरा टारगेट आसानी से बन सकती है। तो आप जब भी कभी ऐसे रास्ते पे निकलते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होके चलो और अपने बॉडी लैंग्वेज से उसको दिखाओ कि हाँ, मैं बिल्कुल हार्ड हूँ, मैं नाजुक हूँ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। तो हमारी जो यूनिट है, क्योंकि हमारे समाज में, देश में महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियां मिलती आ रही है ना? चुनौती है एक आत्म सुरक्षा, है कि नहीं? मानते हैं इस चीज को सभी? उसी को ध्यान में रखते हुए सन 2002 में ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की मुहिम जारी की थी, जो कि लगातार कार्यरत है। और इस ट्रेनिंग के तहत हमने अब तक 2002 से अब तक दिल्ली की 17 लाख महिलाओं और बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको सशक्त बनाया है। और हमारी यूनिट का नाम सन 2017 और 18 में लगातार 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही अचीवमेंट हमें हासिल हो, बट इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि दिल्ली का हर बच्चा सुरक्षित रहे। तो ये यही चाहती है। और एक और बड़ी बात मैं बताती हूँ, जो कि शायद आपके पेरेंट्स ने हमेशा से यही सिखाया हो सकता है किसी बच्चे के पेरेंट्स ने नहीं भी सिखाया हो, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना मेट्रो में, बस में जाते हैं, किसी मम्मी के साथ में या पापा के साथ में, छोटा बच्चा है, अगर वो चॉकलेट मांग रहा है, अगर कोई खिलौना मांग रहा है, तो क्या कहेंगे? पुलिस आंटी है, पुलिस दीदी है, ये पकड़ ले जाएगी। सही है गलत? अब आप ये बताइए कि हम पुलिस आंटी, पुलिस दीदी जो भी हैं, क्या हम आपको पकड़ने आए हैं? पकड़ने आए हैं आपको? तो क्यों हम उस छोटे से बच्चे के दिमाग में एक पहले ही नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं कि ये पुलिस तो पकड़ने के लिए आई है? भाई बताओ, पुलिस किसको पकड़ती है? क्रिमिनल को पकड़ती है। आप उस बच्चे को ये क्यों नहीं बोलते कि ये पुलिस अंकल, ये पुलिस आंटी, ये आपका एक दोस्त है, दोस्ती वाला हाथ निकालो और बढ़ाओ और दोस्ती करो। आपके बिना हम नहीं, हमारे बिना आप नहीं। ये 24 घंटे आपकी सहायता के लिए तैयार है, और ये उन लोगों को पकड़ती है जो मानसिक रूप से वीक है, जो अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ गलत करते हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक छवि अच्छी बनेगी। और ये आप लोग कर सकते हैं, जो नई जनरेशन है, जो भी सुन रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। ये चीज आप आगे जाके बताएं, क्योंकि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, विजिट भी करते हैं, हम लोग जाते हैं, बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश से ज्यादा आपकी कोशिश भी कामयाब होगी। क्योंकि बहुत जगह जाते हैं, बच्चे बताते हैं, महिलाएं बताते हैं कि पुलिस के पास जाते हुए डर लगता है, कंप्लेंट के लिए डर लगता है। वहां पे नहीं, कभी पुलिस डराती नहीं है, आपकी हेल्प के लिए। तो ये दिमाग में अगर किसी के में भी है तो निकाल देना, और आपके घर में बड़े छोटे बच्चे, मम्मी पापा जो भी हो, उनको भी आप बता देना कि नहीं, पुलिस कभी भी डराती नहीं है। अब दिल्ली पुलिस का हेल्पलाइन नंबर पता है किसी को? जोर से बोलो।
सही बोलेंगे तो भी कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, गलत बोलेंगे तो भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। 1091। कोई और? देखो कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही है, मुझे पता है पर मैं बोलूं कैसे? 112 कहां से आई आवाज? 112 कितना है? 112 है। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि है कभी भी जरूरत पड़ सकती है इन नंबरों की। अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। 112 है ऑल इंडिया पुलिस हेल्पलाइन नंबर, और जो 1091 अभी किसी बच्चे ने बताया था वो है महिला हेल्पलाइन नंबर। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। फोन सभी के पास है, कोविड के बाद तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी आ गए। और आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है, किसका चल रहा है? इंस्टा का। इंस्टा पे चल रहा है ना, बहुत गंदी बीमारी है, सब होंगे ना। अब आप ये मत बोलना कि मैडम आप हमारा इंस्टाग्राम चेक करने आई हो या बंद करने आई हो, ये मत बोलना। पर ये बता दो, हाँ आप लोग इंस्टाग्राम पे हो सभी। देखो किसी भी चीज को यूज करना बुरी बात नहीं है, बट उसकी अगर लिमिट क्रॉस करते हैं हम लोग तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप अपना अकाउंट प्राइवेट रखो। नॉन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो जिसको आप जानते नहीं, चाहे उसने कितनी अच्छी फोटो क्यों ना लगा रखी हो, बिल्कुल नहीं लेनी है। फिर भी अगर कोई आपके पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई गलत मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसके लिए है 1096 हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉल करके आप कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया आजकल, और सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं अननोन पर्सन की वीडियो कॉल आती है। अगर आपने गलती से भी अटेंड कर ली, सामने वाले का कैमरा ब्लैंक होता है, हमारे वो फेस की फोटो ले लेते हैं, सामने से लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेल के साथ, फीमेल के साथ, कोई एज क्राइटेरिया भी नहीं है इसमें। उसके तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही वीडियो बना लेते हैं और भेजते हैं तुरंत व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहां से भी वो आपको कॉल कर रहे हैं, तुरंत मैसेज आएगा, वीडियो आएगी कि या तो मैं जो बोलूंगा बोलूंगी वो वाला काम करिए मेरे साथ, या इतने पैसे दीजिए मुझे, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, कर दूंगी। तो कभी भी अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पहली बात तो अननोन पर्सन हमें डायरेक्ट वीडियो कॉल क्यों करेगा, है ना समझने वाली बात, उसको अटेंड नहीं करनी है। फिर भी अगर किसी के साथ गलती से किसी ने अटेंड कर लिया, अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया है तो उसके लिए आप नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन में जाइए, रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए। 1096 हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी आप कॉल करके कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, बट वो नंबर बहुत बिजी होता है, तो आप फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाइए या cybercrime.government.in वेबसाइट पे भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने की हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है, उनके साथ भी ये हुआ है अननोन पर्सन की वीडियो कॉल वाला केसेस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मुझे पता है बेटा। तो घर जाके आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर बताइए, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का एक सेफ्टी एप्लीकेशन है, हिम्मत प्लस है, किस किस को पता है? मेट्रो में आते हैं, मेट्रो में भी स्टिकर लगे हुए हैं इसके, हिम्मत प्लस ऐप के, देखा हो कभी तो। फोन में है, किसी के फोन में डाउनलोड कर रखा है, कर रखा आपने? और बच्चों ने सभी प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, ये बहुत यूजफुल ऐप है। यहाँ तक कि हम लोग भी रखते हैं, जब भी आप कहीं बाहर होंगे, ऐसे रात में सफर कर रहे हैं, कैब करी, ऑटो किया, जब हमें लगा कि अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं क्या करूं, कैसे अपनी हेल्प लूं, तो उस ऐप में जाके SOS क्लिक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, अपनी डिटेल फिल करनी है, उसके बाद वो 2 अल्टरनेट नंबर मांगेगा, वो पेरेंट्स के देने हैं। होगा क्या, आप हमारे PHQ से कनेक्ट हो जाएंगे। उसमें आपका नेटवर्क में होना जरूरी है, एक लोकेशन ऑन
रखना जरूरी है। और लोकेशन तो आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं अपने फोन की हमेशा ऑन रखो, क्योंकि कोई भी हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो लोकेशन ऑन हो तो एटलीस्ट लोकेशन के द्वारा आपको देखा तो जा सकता है, तो लोकेशन ऑन रखना जरूरी है। होता क्या है, जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है आप SOS क्लिक करेंगे, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत ये है कि जैसे फोन का कैमरा है उसको नीचे की तरफ नहीं दबाना है, कैमरे को ऐसे रखना। होगा क्या, लाइव वीडियो बनेगी और हमारे PHQ के पास चली जाएगी और तुरंत मैसेज कॉल चला जाएगा कि आपको अभी हेल्प की जरूरत है। वीडियो के द्वारा आपको देखा जाएगा आपके साथ क्या घटना हो रही है, नियर बाई पुलिस स्टेशन से PCR वैन आएगी, बचा लिया जाएगा। इसलिए ये एप्लीकेशन मेल और फीमेल सभी के लिए यूजफुल एप्लीकेशन है। याद रहेंगी ये चीजें। अब आते हैं हम टेक्निक पे। अब ये बताओ, जब भी आप कॉलेज के लिए आ रहे हो या मार्केट में जा रहे हो, मम्मियां भी जाती है ना मार्केट में शॉपिंग के लिए जाती है, या वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस के लिए जाती है, तो क्या वो वेपन लेके जाती है साथ में? लेके आए हो? क्या है? पेपर स्प्रे। चलो, लेकिन इसका भी है ना, आप अगर रखते हो ना इसको तो इसका यूज आना भी जरूरी है। कई बार ये होता है ना, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और हमारे पास पेन है, नोटबुक है, डायरी, दुपट्टा, हेयर पिन, वाटर बोतल, अम्ब्रेला, बैग, इनसे भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेपन ही है। लेकिन हमारी जो ये बॉडी का पार्ट है ना, इतना बड़ा हिस्सा है ना, ये इसमें भी बहुत सारे वेपन है। आपको पता है? बताओ कौन से वेपन है? हाथ का कौन से वाला हिस्सा? पाम और टोनी। गुड। अभी देखो मैडम करके दिखाएंगी। हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो बॉडी के हार्ड पार्ट है उनको यूज करना है। और ईव टीचर का कौन सा पार्ट होना चाहिए? कौन से वाला पार्ट? सॉफ्ट पार्ट होना चाहिए। देखो मैंने ना अपनी बॉडी को इनकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। अपर पार्ट में कौन कौन से सेंसिटिव पार्ट है? बहुत सारे। हाँ, नोज सबसे ज्यादा चोट कहाँ पे लगती है? नोज पे। आईज, टेम्पल बोन, ईयर, कॉलर बोन, नेक, चिन, बहुत सारी जगह है। ऐसे ही मिडिल पार्ट में रिब्स, स्टमक, और लोअर पार्ट में थाइज, नी, वाइटल पार्ट। जहां जो भी सेंसिटिव पार्ट है ना उसी पे चोट देनी है। अभी मैम करके दिखाएंगी, पहले देखना है आपको। अटेंशन गर्ल्स, रेडी, सिकोदाची पंच पोजीशन, रेडी, आवाज देख रहे हो? आवाज देख रहे हो ना? ये क्यों निकाल रहे हैं आवाज? स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए और सामने वाले के दिमाग पे प्रेशर डालने के लिए, उसको भगाने के लिए, डराने के लिए। क्योंकि अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो हम उसको चुपचाप जवाब नहीं देंगे, चिल्ला के बोल के जवाब देंगे। मिडिल पंच, रेडी, 1 2 3 4। अब ये पंच बनाया और पंच का हार्ड पार्ट क्या है? नकल्स, जहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सीखा है। बाय रिक्वेस्ट मिसयूज कभी भी मत करना इन चीजों का। जहां पे हमें सच में ही जरूरत है वहां पे यूज करना है, ठीक है? अपर पंच, 1 2 3 4। अब ये पंच टाइट बना के और किसी की नाक पे मारेंगे तो क्या होगा? नाक टूट जाएगी, नाक से ब्लीडिंग होगी और ईव टीचर का ध्यान उसकी चोट पे रहेगा, वो वहीं गिर जाएगा और हमें वहां से भागने का मौका मिल जाएगा। हमारा मकसद क्या है? अपना बचाव करना और वहां से भाग जाना। किसी की जान लेना तो नहीं है, अपना बचाव किया और चले गए। और सबसे बड़ी बात है, जहां पे बात बोलने से बन जाती है वहां क्यों किसी को थप्पड़ मारना, बट अगर बोलने से भी नहीं मान रहा है तब ये वाले अटैक उसको जरूर देने हैं। लोअर पंच, 1 2 3 4। बोथ हैंड नकल्स अटैक, 1 2 3 4। ये है, अगर कोई जबरदस्ती हमारे क्लोज आ रहा है, गले लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या करना है? दोनों हाथों के पंच टाइट बनाने हैं और नकल से कॉलर बोन पे हिट करना है। क्या होगा? उसको धक्का लगेगा, वो गिर जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। पाम चिन अटैक, रेडी, 1 2 3 4।
पंच बना के भी किया अटैक, लेकिन कई बार ये भी तो हो सकता है पंच याद ना हो, पंच बना भी नहीं पा रहे हो, हाथ फुलाओ, तो क्या करेंगे हम? हथेली से उसकी चिन को ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। टेंपल अटैक 1 2 3 4। हाथ का ये वाला हिस्सा एज ए ब्लेड यूज करेंगे और कहां पे? टेंपल बोन पे अटैक करेंगे। पांच 1 2 3 4। अपर फिंगर टिप्स अटैक 1 2 3 4। अभी तो नेल्स होंगे शायद सभी के पास, नेल्स बना रखे ना? देखो ये नेल्स आपके पास हैं, ये आपकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं ना? अच्छी अच्छी नील पेंट लगा रखी होगी, बढ़ाते हैं ना? सच्चाई को स्वीकार करो ना। लेकिन ये सुंदरता के साथ साथ क्या करते हैं? सुरक्षा के भी काम आते हैं। क्या कर सकते हैं? सामने वाले को स्क्रैच कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास नेल्स नहीं है तो हमारे जो ये फिंगर टिप्स है इनसे भी अटैक कर सकते हैं। अभी अपर किया तो कहां पे? आंखों में या गले में। मिडिल फिंगर टिप्स अटैक 1 2 3 4। लोअर फिंगर टिप्स अटैक 1 2 3 4। टू फिंगर आई अटैक 1 2 3 4। पता ही लग रहा होगा, दोनों उंगलियां दोनों, लेकिन जहां पे जरूरत है वहीं पे देना है। ठीक है, पहले हमें क्राइम देखना है, क्राइम की ग्रेविटी देखनी है कि कैसा हमारे साथ क्राइम हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अटैक देना है। पोजीशन चेंज। अब यू टीचर और हमारे बीच में अगर डिस्टेंस कम है भीड़ वाले इलाके में, तब भी हम क्या करेंगे? पंच बना के नकल से उसके फेस पे अटैक। फ्रंट शॉट पंच 1 2 3 4। टेंपल शॉट पंच 1 2 3 4। दोनों हाथों का यूज है कहां पे? बस करके दिखाओ दोनों आपस में, यहीं से। राइट हैंड का पंच, दोबारा से, ठीक, रुको वहीं पे। राइट हैंड का पंच बनाया। राइट हैंड का पंच क्यों है? क्योंकि राइट हैंड सभी का ताकतवर है ना, तो राइट हैंड का पंच लेना और दूसरे हाथ का सपोर्ट। अब ये दोनों हाथों से उसके कानों पे मारोगे तो क्या होगा? कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों के साथ आपस में नहीं करना है और घर पे बहन भाइयों के भी अप्लाई नहीं करना है। अब आगे का काम देखते हैं, आगे आगे आगे। पोजीशन चेंज। अब ये तो हम सामने अगर कोई बदतमीजी कर रहा था तब उसको अटैक दे देते। अब कोई ऐसे मेरे जैसे भी कोई खड़ा होके बदतमीज इंसान यहाँ से भी तो बदतमीजी कर सकता है ना? और जरूरी ये भी नहीं है कि आपको टर्न होने के लिए उस टाइम स्पेस भी ले, इतना टाइम भी हो और इतनी मतलब याद भी आए इतनी जल्दी। तो वहीं पे खड़े खड़े हमें कैसे अटैक देना है? अपर साइड शॉट पंच 1 2 3 4। देखो इधर में खड़ी हूं ना, यहीं से गरमाना, ये खींच के मार, ये नकल से कहां पे? फेस पे ही है। अब अगर कोई हमारे से ज्यादा हाइट वाला हो और हमारा हाथ उसके फेस तक नहीं जा रहा हो, तब हमें जरूरी नहीं है वही वाला करें, लोअर साइड कर सकते हैं। लोअर साइड शॉट पंच 1 2 3 4। ये भी कहां पे है? दोनों पैरों के बीच में, थाइस पे। ठीक है, खींच। इसमें शर्माना नहीं है, ये आप अपनी सेफ्टी के लिए सीख रहे हैं, तो शर्माना नहीं है। सामने वाले की नियत तो देखो, वो किस नियत के साथ हमारे से पेश आ रहा है, तो हमें शर्माना किस लिए? मिडिल शुकी 1 2 3 4। ये भी पंच ही है, लेकिन कई बार सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने टेक्निक बनाई हुई है कि पंच हाथ हमारा ऐसे है, तब हम पंच बना के कैसे करें। हाथ की डायरेक्शन चेंज कर दी, उसके साथ ही हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया। वैसे जापानीज लैंग्वेज में पंच को शुकी बोलते हैं, और हमें यहाँ पे भी क्या करना है? नकल से यूज करते हैं। चिंचुकी 1 2 3 4। यहीं से खींच के कहां पे? चिन पे। क्या होगा? दांतों के बीच में जीभ आ जाएगी और कट जाएगी, और हमें वहां से भागने का मौका मिल जाएगा। टेंपल चुकी 1 2 3 4। टेंपल बोन पे ये वाला अटैक भी बताया था, इससे भी कर सकते हैं, वही नकल्स का यूज करते हुए। कॉलर बोन चुकी 1 2 3 4। अभी एक बच्चे ने बताया था यहीं पे कि एल्बो भी हमारा एक हथियार है।
यूज करेंगे। सेंटर एल्बो टैग 1 2 3 4। इसमें क्या है, ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा, नहीं मान रहा, आपने जवाब दिया नहीं माना तो उसके बाल, कॉलर, गर्दन, और आजकल तो छुट्टियां वाले भी लड़के होते हैं जो आपके हाथ लगे पकड़ो, बैकबोन पे एल्बो से भी। अब चिन कैसे तोड़नी है, चिन एल्बो टैग 1 2 3 4। चिन पे अगर खींच के एल्बो से मारेंगे तो क्या होगा, जीभ कट जाएगी। और ये ना डिपेंड आप पे करेगा कि आप कितनी ताकत के साथ उसको अटैक दे रहे हैं। अगर पूरी ताकत के साथ अटैक करोगे जो लाइन भी हिल सकती है, और चाहो तो जो ये 32 दांत है वो बाहर भी गिरा सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बैक साइड हिप एल्बो टैग 1 2 3 4। ये वाला अटैक भीड़ वाले इलाके में, चाहे आप मेट्रो में है, चाहे बस में है, चाहे मार्केट में है, क्योंकि लोग भीड़ का बहाना लेके पीछे से टच होते रहते हैं ना, तो ये वहां के लिए बहुत यूजफुल है। पहले आपने मुंह से बोलना है, नहीं माना, और घूर के देखो उसको, आंखें निकाल के कि बस मैं आंखों से ही नोच दूंगी मैं तुझे, वो वाले फेस एक्सप्रेशन लेके आने हैं। फिर भी नहीं मान रहा तो एल्बो खींच के मार देना। अब ये तो थे अटैक। अब कई बार ये भी तो हो सकता है कि हमने सामने वाले को अटैक किया और फिर से उसने काउंटर अटैक कर दिया, हमारे ऊपर ही कर दिया, तब हम ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक की जगह अपना बचाव करेंगे। अपर ब्लॉक 1 2 3 4। किसी के हाथ में डंडा, चाकू, कुछ भी हो सकता है, और सर पे अगर ऐसे मारने की कोशिश करें तो ब्लॉक के जरिए आप इजीली बचाव कर सकते हैं। टाइट रखना है बिल्कुल, ऐसे खींच के लिए। मिडिल ब्लॉक 1 2 3 4। अगर कोई मिडिल पार्ट पे मारे। साइड ब्लॉक 1 2 3 4। टेंशन, ये हाथों के अटैक हो गए, बहुत सारे हो गए ना। अब सिचुएशन ये आती है, कई बार हो सकता है कोई हमारे अगर हाथों को पकड़ ले, दोनों हाथों को पकड़ ले, तब हम क्या करें, हमारे और जो आपने फैंसी वाली लात मारी होगी ना, ऐसे मारे होंगे ना एक दूसरे को, उसको ही अच्छे से कैसे मारना है वो देखना है। किक पोजीशन, राइट लेग बैक, रेडी अप। अब जो पीछे वाला पैर है ना, उससे उसका जो नीचे वाला हिस्सा, पैर का नीचे वाला हिस्सा, शोल, उससे मारना, उसको धक्का मार के गिराना है। फ्रंट किक 1 2 3 4। लोअर किक, जूते की जो लेसिस बांधते हैं ना शूज की, वो वाला हिस्सा, जैसे हमारे हाथ पे ये हिस्सा है ना, ऐसे पैर का भी हिस्सा है, उससे वाइटल पार्ट पे। रेडी 1 2 3 4। हाइपो पोजीशन, रेडी अप। में से कैसे मारना है, अभी जैसे एल्बो से उसको झुकाया और खींच के उसकी बैकबोन पे एल्बो से किया था, अब घुटने से कैसे मारना है। नी किक, रेडी 1 2 3 4। इसमें भी वही है, पकड़ा, झुकाया और वहीं से जहां पे भी आपको इजी लग रहा है, जहां पे भी आप फेस पे मार सकते हैं, जहां पे भी आपको घुटना जाए, पकड़ना, खींचना, झुकाना और वहीं पे मुंह तोड़ उसको जवाब। ऐसा जवाब देना है कि वो 7 जन्म ले तब भी वो महिलाओं से दूर है कि नहीं, ये तो वैसे ही बच्ची हो सकती है, मुझे जवाब दे सकती है। ये वाली शक्ति अपने अंदर लेके आनी है। अब है हैंड ग्रिप। अगर कोई आपका हाथ पकड़ ले, क्या करोगे बताओ? टांग से मारोगे? मैंने टांग से, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने टांग से मारा, हाथ नहीं छूटा तो काट लेंगे। ठीक, और सुनो, सबसे पहला है जहां से उसने हमें ग्रिप कर रखा है ना, वहां से रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसको मारा भी ना, हो सकता है उसको ज्यादा चोट ना लगे और वो ज्यादा ग्रिप कर रहे और हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो जाए। पहले देखना है। ग्रिप के लिए पोजीशन चेंज, अटैक कौन है? अब देखो यहाँ पे ना है तो दोनों लड़कियां ही, लेकिन ये मैडम लड़की का रोल प्ले करेंगी और ये लड़का बनेगी अभी, ठीक है? क्योंकि होता क्या है,
भाई कभी हमने ये तो नहीं सुना एक लड़के ने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी, नहीं सुना ना। मोस्टली लड़के ही करते हैं, एक थोड़ी सी एज के बाद वाले लोग भी करते हैं ऐसी हरकत, तो उनसे बचना है आपको। फर्स्ट हैंड, बोथ हैंड, रेडी। लड़के ने क्या करा, अपने दोनों हाथों से लड़की का एक हाथ पकड़ लिया। अब क्या इसमें करना क्या है, लड़के के दोनों हाथों की उंगलियां मिला के कितनी है, 4 + 4 8 है ना, और अंगूठे कितने हैं, 2। हमें पावर कम देखनी है, जहां पे पावर कम है वहां से रिलीज होना है। आपका दूसरा हाथ फ्री है, उसको अंगूठे की साइड लेना है, दोनों हाथों के बीच में डालना है, अपना बॉडी वेट उस पे डालना है, उसका दिमाग डाइवर्ट करना है। उसको ये लगेगा कि हम नीचे की तरफ हाथ छुड़वा रहे हैं, जबकि हमें तो क्या करना है, चकमा देना उसको। वो खुद ऊपर की तरफ खींचेगा हाथों को, हमें भी पावर और कम लगेगी। एल्बो को बैंड करते हुए हाथ छुड़वाना है और फिर आगे बढ़ के काउंटर अटैक, जो भी आपको याद आए। हमने ये काम सीक्वेंस में बना रखा है, इसलिए अटैक अलग अलग करते, बट अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कोई भी अटैक दे सकते हैं। एक बार स्पीड में करेंगे। फर्स्ट हैंड ग्रिप, रेडी, अप, अटेंशन। पता लग गया, टेक्निक है इसमें। और अभी मैं 1-2 बच्चों को बुलाऊंगी, वो करके देखेंगे, क्योंकि करके देखना भी जरूरी है ना, टेक्निक का यूज हो भी रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं वो बच्चे आएंगे। हाथ भी तो पकड़ सकता है, कोई पकड़ सकता है ना। सेकंड, बोथ हैंड, रेडी। इसमें भी हमें वही पावर कम देखनी है। आप थंब की साइड अंदर की तरफ है ना, वही दोनों हाथों को मिलाना है झटके के साथ। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो रही है, यहाँ पे आपको काम बताया जा रहा है, सिखाने के लिए बताया जा रहा है, तो स्लो में बता रहे हैं। लेकिन अगर कभी किसी के साथ ऐसा होगा तो वो तो फास्ट, कुछ सेकंड्स का काम है, क्विक एक्शन है, बिल्कुल झटके के साथ। उसने अगर पकड़ा तो छुड़ाया और मारा और भाग गए। स्पीड में दिखा दो, रेडी, अप, टेंशन। थर्ड, अगर लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मार दे और फिर वो हाथ पकड़ ले, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हाथ पकड़ लिया, लड़की ने थप्पड़ मारा और इस लड़के ने हाथ पकड़ लिए। अब सेम वही लड़के के अंगूठे देखने हैं, अंगूठे की साइड से हमें ग्रिप बनानी है, और ग्रिप हमेशा ना जैसे मैडम बना रही है वो वाली ग्रिप बनानी है, ऐसे वाली ग्रिप नहीं, इसमें हाथ छूट जाएंगे। ये वाली ग्रिप बिल्कुल नहीं छूटेगी, यहीं से खींच के नीचे तरफ ये हाथ छुड़वाया और यहीं से उसके कान पे, कान से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर खींच के आपने मार दिया। कौन है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है? आगे ट्राई कर सकते कोई भी नहीं है। मैम आप भेज दो 2 बच्चों को, लेफ्ट पे आओ ना, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। 2 बच्चे भीड़ से हटके निकल के आना ही सबसे बड़ी बात है, और वो सीखना जरूरी है। उठ के आना, आपको नहीं आ रहा हम बताएंगे, आप आओ तो सही। और आप सारे बच्चे अपने आप को कमजोर समझते हो क्या? इस भारत की नारियां कमजोर हैं? कमजोर है क्या? इतनी सी आवाज, आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। कौन हाथ पकड़ेगा? लड़का कौन बनेगा? पकड़ो पकड़ो, दोनों हाथ पकड़ लो। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अब ना आप हंसोगे नहीं, आप सीरियसली ये सोचो कि सच में ये मेरा दुश्मन है और इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरा हाथ पकड़ने की। पकड़ो, दोनों हाथों से पकड़ो, हाँ दोनों हाथों से पकड़ो। आप इसको मत पकड़ो, आप पकड़ लिया, आपका दूसरा हाथ फ्री है, लेके आओ उस हाथ को, यहाँ इसके यहाँ है, यहीं से ये डालो दोनों हाथों में, ग्रिप बनाओ, ग्रिप अपने हाथ की ये ग्रिप बनाओ, और झटके के साथ नीचे जाओ और यहीं से ये करते एल्बो बैंड करते खींचो हाथों को। आप हाथ मत छोड़ो, हाँ हाथ मत छोड़ो, हाथ में कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? ग्रिप गलत बना रखिए आप, ये वाली ग्रिप छूट रहा है कि नहीं छूट रहा? हाथ छूट रहा है, तालियां तो बनती है।
कोई डाउट? क्लियर हो गया? सबको बताओ टेक्निक काम आई? जोर से बोलो। बोलो यस। जाओ और कोई? आप जल्दी, कोई भी आ सकता है। जब से बैठी हूँ लगी हुई हो। मजाक तो नहीं करना। फिर से दिखा दो। रेडी? देखो क्या करना है, दोनों हाथों से हाथ को लिया। रेडी अप। अब यहीं से अगर थोड़ा सा भी और खींच दिया ना तो ये हाथ नीचे टूट जाएगा। ले भाई अपना हाथ ले और घर जा। इसकी पोजीशन भी देखनी। हाँ। अगर हथेली आसमान की तरफ है तो ही टूटेगा। अगर ऐसे है तो बिल्कुल अपने पास मारो। ये तो आपके ऊपर ही है। तो ये टर्न करना है, एल्बो जो नीचे की तरफ है ना तो वहां से तोड़ना है। थर्ड, कमर पे भी हाथ लगा देते हैं। रेडी? और ये ज्यादातर जो प्राइवेट वैन आरटी वगैरह चलती है ना उनमें कंडक्टर करके पूरा पीछे से लेकर साइड से लेके टच कर देते हैं। अब हम जब घर से यहाँ तक आ गए तो क्या हम उसमें बैठ नहीं सकते? बैठ सकते हैं ना? क्यों हम उसको जवाब नहीं देते कि कौन होते हो तुम मुझे चढ़ाने वाले? मैं अपने आप चढ़ूंगी। टच करोगे। रेडी अप। दूसरे हाथ से जो हमारा हाथ फ्री था वही कलाई से पकड़ना। और इन्होंने क्या कर रखा, हाथ को बिल्कुल टर्न कर रखा है, यहाँ से हाथ टूट जाएगा क्योंकि उसको अपने कंट्रोल में करना। और फिर एल्बो से उसके कहां पे, कान पे टैप। अटेंशन टच। रेडी? पैर से पैर ही टच कर दिया। अब मुझे तो आज तक समझ नहीं आया ऐसे लोगों को मिलता क्या है। सोचने वाली बात है ना, हंसी आई ना। लेकिन आप ये सोचो अगर सच में किसी के साथ ऐसा होता है तो हम कितने इरिटेट हो जाते हैं। वो हमें यहाँ से पेन देते हैं, मिलता है ना। उस पेन को हम क्यों ना वहीं पे निकालें। फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकालते हैं छोटे बड़े बहन भाइयों पे या घर वालों पे, नहीं, हमें वहीं पे निकालना है। इसमें अगर हमने हील्स पहन रखी है तो करना क्या है, अपना पैर उठाना, उसके पैर पे रखा, पूरा बॉडी में डाल के मसल दिया। सॉरी, वो इंसान तो ये सोचेगा कितनी जल्दी बस रुके, मेट्रो रुके और मैं भाग जाऊं यहाँ से, क्योंकि उसने बदतमीजी ऐसी करी है, शर्मनाक ही करी है हरकत उसने। अगर दोनों ने शूज पहन रखे हैं तो इतनी चोट नहीं लगेगी। तो शूज पहन रखे तब कैसे करना है, जैसे हाथ पे ये वाला ब्लेड था ना हिस्सा, इसको ब्लेड की तरह यूज किया था, ऐसे ही पैर का भी है साइड वाला हिस्सा, उसको कहाँ मारना है, सीन बोन पे। ये वाले ये हड्डी कभी लगी है किसी की बैट से, दीवार से? इसका मतलब सब पहनते हैं, सब काम करते हैं, क्योंकि जो काम करता है ना उसकी टकराती है। ये चोट कितनी लगती है, वो लगती है ना, वहीं पे हम लोग बैठ जाते हैं। तो क्यों ना हम उसको भी वहीं पे बैठा दें, उस बस में या मार्केट में, मेट्रो में जहां भी है, वहीं पे उसको धराशायी कर दें। रेडी अप, अटेंशन, बॉडी टच। रेडी? सबसे खतरनाक सिचुएशन है ना, यही होता है। बिल्कुल सच बोला आपने, ये ही होता है। लेकिन उसको क्यों हम रोकते नहीं है? हाँ, इस टच को बिल्कुल किसी को अधिकार नहीं दे रखा हमने कि हमारी बॉडी को कोई छुए, दे रखा है, वहीं पे उसका मुंह तोड़ना है। रेडी अप। फिर से दिखाए, मजा आ रहा है, मैडम पिट रही है। स्लो में देखते हैं, ठीक है? देखो बैस इसमें यही है, इस मैं बताती हूँ कि बस भीड़ ज्यादा है। अगर आपको सबसे पहले उसको मुंह से बोलो, ठीक है? नहीं मान रहे उसको, दोनों हाथ फ्री है, दोनों हाथों से, एक हाथ फ्री है, उससे पकड़ के लेके आओ, झुकाओ और वहीं से मारे जाओ। ये हमने सीक्वेंस में बना रखा, तो वन पे हम स्लैप और पंच और एल्बो से उसके कान पे आप स्लैप करते रहो जब तक उसको इतने अटैक हो, जब तक वो बेहोश ना हो, गिरे ना, और फिर भाग जाओ। तो इसकी प्रैक्टिस कोई करना चाहेगा? Once more. देखो तो सही। रेडी अप।
टेंशन। डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। आ जाओ। बच्चे आपको मैं कब से बोल रहे हैं, आप आ जाओ ना। आप कौन सी वाला करोगे? लास्ट वाला। चलो हमारी तरफ फेस करो, बिल्कुल टच हो जाओ, हाथ ऊपर ऐसे। आप बस में जैसे खड़े हैं, इमेजिन करो बस में खड़ी हो। पकड़ो पकड़ो। इसमें क्या करना है, अपने आप को दूर नहीं करना है। क्लोज रहेगा तो वो आपको फिर से पकड़ सकता है ऐसे, तो क्लोज नहीं रखना, आपको दूर करना है। अपना राइट पर पीछे लो, हाँ बिल्कुल टच पकड़ो। आराम से। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ही वाला अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो भाई हम सीख रहे हैं ना। लेकिन के साथ आवाज निकाल के अपनी वाला, ठीक है? आवाज दोनों पे। और देखो जिसके साथ बदतमीजी हो रही है वो आवाज, उसको तो गुस्सा आएगा, और जो पीछे खड़ा वो पिट रहा है वो भी निकालेगा ना। बताओ बेटा, निकालनी है यहाँ पे आवाज। आओ नहीं निकालेंगे, खे निकालेंगे, ठीक है? टच हो जाओ, बिल्कुल। खे, पेट से आवाज, जो मैडम अभी आवाज निकाली थी ना, गले से नहीं, पेट से आवाज की है। ये पेट से आवाज निकालेंगे, ठीक है? टच हो जाओ, बिल्कुल। पकड़ो पकड़ो, हाँ पकड़ो। मैं जैसे बोलूंगी ना रेडी, अब तो झुका के लेके आना आवाज के साथ। दोनों पकड़ लो, रेडी अप। वेरी गुड। हमारी मेहनत सफल हो गई, और ये सच में दिल से सब बच्चों के अंदर यही वाला जोश होना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा? अच्छा, ये एक बात और सुनो, ये तो था वनडे वर्कशॉप प्रोग्राम जिसमें हम लोग आपको टेक्निक करके दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारा 10 डेज का भी प्रोग्राम होता है, उसमें डेली हम 1 घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं, और लास्ट डे दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप सभी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मैम को बता सकते हैं। जब भी आप फ्री हो, 10 दिन लगातार वर्किंग डेज में हम लोग आपके यहीं पे आएंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे, अगर आप सीखना चाहते हो तो। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाओ, आजकल गूगल करो, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, ठीक है? अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो पुलिस में आने के लिए कहते नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं तो अपने आप को ना लकी मानती हूँ कि मैं पुलिस में हूँ। क्यों? पुलिस में भी हूँ, चुनौतियां भी बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, तो बड़ा प्राउड फील होता है। और उसके बाद इस फील्ड में जहां से हम लोग आप जैसे बच्चों से मिलते हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चों से, छोटे बच्चों से भी मिलते हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने। 10 साल से हम इस फील्ड में हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी अलग अलग यूनिट, अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। हमारी यही ड्यूटी है, हम लोग दिल्ली में ये ट्रेनिंग ही देते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा पुलिस को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन करो, अच्छी जॉब है। आईपीएस के तौर पे जाओ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जो मर्जी, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। और लड़कियों के लिए एक बात और है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। आप जब भी पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चे की अच्छी शादी करूंगी, अच्छे घर वाले मिलेंगे, लेकिन जो किस्मत में लिखा है ना, उसको कोई नहीं डाल सकता। तो आपको अपने पैरों पे इतना मजबूत होना, इतना खड़ा होना कि अगर आगे कोई घटना हमारे साथ हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, हम अपना अच्छे से भरण पोषण कर सके, अपना और अपने बच्चों का। इसलिए आपको अच्छा स्टैंड लेना है, और सबका लक्ष्य होगा कहीं ना कहीं। अब सभी डॉक्टर नहीं बनते, सभी आईपीएस नहीं बनते, सभी इंजीनियर नहीं बनते, लेकिन कुछ ना कुछ हमें जरूर बनना है। प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट में भी है, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आप अचीव करें। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।
Police Unit for Women and Children for your precious time and insight towards self-defense training. Now I would like to invite Assistant Professor Law and NSS Program Coordinator Ms. Muskan Rohan Ma'am to present something to the guests as a token of gratitude. Thank you so much for everyone to come in. Thank you so much for the Delhi Police Special Unit for Women and Children for spending their time with us today and giving us a very good insightful training. I hope it will be useful to all of you, and I hope that it doesn't happen to any one of us. But yes, for our self-defense, for anything at any time, it can be used. And thank you ma'am, thank you all of you. And we would like to have more sessions with the Delhi Police Special Unit for Women and Children in future. And like ma'am said, that if students are interested in having a 10-day session, then we can organize that also for you people, and then you will get a proper certificate from Delhi Police as well for the training. I would take this opportunity to thank our management, Vice Chairman Sir, Chairman Sir, Director Sir, Prachi Ma'am, for allowing us to keep and organizing such events, motivating us, and thank you all for being here, such a wonderful audience, all the girls.